Hello children, I am Poonam Bagga and we are studying chapter 3, Playing with Numbers. In our previous class, we learnt about some more divisibility rules and prime factorization of a given number. Today we will be doing exercise 3.5, question 1 to 6 based on these two topics. So the first question from the exercise is, which of the following statements are true? So here we will be given a few statements and we have to examine whether they are true or false. The first one is, if a number is divisible by 3, then it must be divisible by 9. Now, which numbers are divisible by 3? Actually, the multiples of 3 are divisible by 3. So, let us first write down the multiples of 3. They are 3, then 3 2s are 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 and so on. All these numbers are multiples of 3 and so divisible by 3. But now, are they also divisible by 9 also? Let us check. Just have a look at these numbers: 3, 6, 12, 15, 21, 24, 30, 33 and so on. Are these numbers divisible by 9? No, these numbers are not divisible by 9. But yes, they are divisible by 3. So, the given statement is false. Numbers like 12, 15, etc. You can get many more numbers ahead of this. These are divisible by 3 but not by 9. And so, the statement is false. Okay, got it? The next statement is, if a number is divisible by 9, it must be divisible by 3. Here let us recall the divisibility rule which we learnt in our previous class, which said that if a given number is divisible by another number, then it will also be divisible by its factors. Here it is, if a number is divisible by another, then it is divisible by the factors of that number. And here 3 is a factor of 9. We know that 3 divides 9 completely. So if any number is divisible by 9, then it is also divisible by 3 and the statement is true. You can examine this by taking some numbers which are divisible by 9. All the multiples of 9 are divisible by 9. 9 के सभी multiples 9 से तो divisible हैं. हम चेक करते हैं क्या ये 3 से भी divisible है या नहीं. बिल्कुल 9 भी 3 से divisible है. 18 3 की टेबल में है, 3 से divisible है. 27 भी 3 से divisible है. 36 भी, 12 3 ज़ा 36, 45, 54 आप डिजिट्स ऐड करके देखिए 9 आ रहा है, तो 3 से तो डिविजिबल है. तो हम क्या देख रहे हैं कि सभी नंबर्स जो 9 से डिविजिबल हैं वो 3 से भी डिविजिबल हैं और इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बोथ बाय 3 and 6. Here let us recall one divisibility rule which we learnt, that if two numbers are co-prime numbers, then any number divisible by these two numbers will also be divisible by their product. अगर कोई नंबर दिए हुए दो नंबर्स से डिविजिबल है और वो नंबर्स को-प्राइम हैं तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा. अब यहाँ पर 18 क्या है? 18 3 और 6 का प्रोडक्ट है. अगर 3 और 6 को प्राइम हुए तब हर नंबर जो 3 और 6 से डिविजिबल है वो 18 से भी डिविजिबल होगा. लेकिन 3 और 6 अगर को प्राइम नहीं है तो फिर हर नंबर जो 3 और 6 से डिविजिबल हो रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि 18 से भी डिविजिबल हो. तो सबसे पहले हमें 3 और 6 ये को प्राइम है या नहीं ये चेक करना पड़ेगा. उसके लिए आप ऐसी टेबल सोचिए कि जिसमें 3 और 6 क्या एक साथ किसी की टेबल में आते हैं? Do we get 3 and 6 together in any of the tables?
Yes, 3 and 6 are there in the table of 3, and so 3 is a factor which is common to 3 and 6 other than 1. So 3 and 6 are actually not co-prime numbers. 3 और 6 में इसके फैक्टर्स लिखते हैं, 1 और 3 हो गया, 6 के फैक्टर्स हो गए 1, 2, 3 और 6. तो आप देख रहे हैं 1 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है. और क्या पहचान है कि ये दोनों 3 की टेबल में आ रहे हैं, इसलिए ये को-प्राइम नहीं है. तो यहाँ हम लिखेंगे हियर 3 and 6 आर नॉट को-प्राइम numbers. And so if a number is divisible by 3 and 6, it is not necessary that it will also be divisible by 18. हाँ, अगर 3 और 6 को-प्राइम होते तब तो इनके प्रोडक्ट से डिविजिबल होता दिया हुआ नंबर, लेकिन क्योंकि ये दोनों को प्राइम नहीं है तो कोई भी नंबर जो 3 और 6 से डिविजिबल है वो ज़रूरी नहीं है कि 18 से भी डिविजिबल हो भी सकता है और नहीं भी. सो लेट अस फाइंड आउट सच नंबर्स. जस्ट थिंक अबाउट द नंबर 12. It is divisible by 3 also and 6 also, but it is not divisible by 18. So numbers 12, similarly 24, these are the numbers which are actually divisible by 3 and 6. 3 और 6 से ये डिवाइड हो रहे हैं लेकिन 18 से नहीं. So divisible by 3 and 6 but not by 18. So the statement is false. Okay, next we have, if a number is divisible by 9 and 10 both, then it must be divisible by 90. Here again we have two numbers 9 and 10. अगर 9 और 10 को प्राइम हुए तब तो कोई भी नंबर जो 9 और 10 से डिविजिबल है वो 90 से भी डिविजिबल होगा उनके प्रोडक्ट से. लेकिन अगर 9, 10 को प्राइम नहीं है तो नहीं होगा. तो सबसे पहले what we have to do, we have to check whether 9 and 10 are co-prime or not. For this, just think about any table, whether they both come together in any of the tables. No, 9 और 10 एक साथ किसी की टेबल में नहीं आते, इसलिए इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है एक्सेप्ट 1, और इसलिए ये co-prime numbers हैं. So what we write here is 90 is equal to 9 into 10. Now we write down the factors of 9. They are 1, 3 and 9. Factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. You can see only 1 is the common factor. So the two numbers are co-prime. And because these two numbers are co-prime, therefore we can say that if a number is divisible by 9 and 10, it must be divisible by their product, which is 90. And so the statement is true. Okay, next we have this statement, if two numbers are co-primes, at least one of them must be prime. इसका मतलब अगर हमें दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स दिए हैं तो या तो दोनों प्राइम नंबर होंगे, नहीं तो उनमें से एक तो प्राइम नंबर होगा ही होगा. इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज वी टेक द नंबर 6 and 25. फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1, 2, 3 and 6. 25 के फैक्टर्स हैं 1, 5 और 25. नाउ you have only 1 as the common factor. सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं और ये दोनों एक साथ किसी की टेबल में भी नहीं आते हैं. तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन क्या ये एक्चुअली प्राइम नंबर्स भी हैं? तो आप देखेंगे 6 के भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो 6 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है. इसी तरह से 25 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो 25 भी प्राइम नंबर नहीं है. तो ऐसा कहना गलत है कि इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम देन एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम. उनमें से एक प्राइम नंबर हो भी सकता है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि दोनों ही प्राइम नंबर होंगे. यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों को प्राइम है, लेकिन इंडिविजुअली ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं. तो यहाँ हम लिख सकते हैं नंबर्स लाइक 6 and 25. Similarly
You learnt some questions in the previous exercise, question number 5 of exercise 3.4. There we found some co-prime numbers, sets of co-prime numbers. Just think about 18 and 35. They are also co-prime and still they are not prime numbers. So 6 and 25, similarly 18 and 35 are co-prime, but they are not prime numbers. So the statement is false. Okay, now we have all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8. Again, this is similar to the first statement. 4 के multiples लिखते हैं 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 and so on. All these numbers are divisible by 4, but are they also divisible by 8? You can see there are numbers 4, then 12, then 20, then 28, 36. These are the numbers which are not divisible by 8. तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा. So we see here that numbers like 12, 20 are divisible by 4 but not by 8. So the statement is false. Okay. Next we have all numbers which are divisible by 8 must also be divisible by 4. अब यहाँ पर 8 बड़ा है. अगर कोई नंबर 8 से डिविजिबल होगा तो वो 4 से होगा ही होगा, क्योंकि 4 8 का फैक्टर है और हमें पता है कि कोई नंबर अगर दिए हुए नंबर से डिविजिबल है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. हमने पढ़े थे डिविजिबिलिटी रूल्स, उसमें ये था. और यहाँ हम लिख सकते हैं 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 8. Therefore, the statement is true. Yes, every number which is divisible by 8 must be divisible by 4. Next statement is, if a number exactly divides two numbers separately, it must exactly divide their sum. Two numbers separately we have to take. Let us take the numbers 4 and 16. They both are divisible by 2. Separately divisible by 2. Now, is their sum also divisible by 2? We had discussed it previously. Let us again do it. Their sum will be 20. Is it also divisible by 2? Yes, divisible by 2. तो आप क्या देख रहे हैं, 4 और 16 सेपरेटली 2 से डिविजिबल हैं और उनका सम 4 + 16 20 भी 2 से डिविजिबल है. तो ये स्टेटमेंट सही है. आप यहाँ लिख सकते हैं 4 and 20 are divisible by 2. Their sum 4 plus, okay, I have taken the number 20. Let me take it 16. You can take it 20 also, then also the statement will be correct. Here we are taking 16. 20 is also divisible by 2. So the statement is true. You can take any other example also related to divisibility by 3 or by 5 or by any other number. आप कोई भी और examples अपनी तरफ से ले सकते हैं. मैंने ये divisibility by 2 के examples लिए हैं. 4 और 16 2 से divisible है, उनका sum 20 भी है और इसलिए ये हर numbers के लिए applicable है और statement true है. Next we have, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. इसका मतलब समझते हैं. अगर कोई नंबर, चलिए हम 2 ले लेते हैं, 2 divides the sum of two numbers, किसी सम को डिवाइड कर रहा है. सम ले लेते हैं हम 12, ठीक है, 12 को 2 डिवाइड करता ही है. Then it exactly divides the two numbers separately. आप यहाँ देखिए 12 तो 2 से डिवाइड होता है, यस. अब 12 किसका सम है, 6 + 6 का सम भी ले सकते हैं. तो यहाँ पर 6 और 6 को तो डिवाइड कर रहा है 2, पर हम 12 को 7 + 5 भी तो लिख सकते हैं. पर अब क्या 7 और 5 को 2 डिवाइड करता है?
नहीं करता है, दोनों ऑड नंबर्स हैं। तो ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है कि अगर किन्हीं दो नंबर्स के सम को कोई दिया हुआ नंबर डिवाइड कर रहा है तो इंडिविजुअल नंबर्स को भी वो डिवाइड करेगा, ये ज़रूरी नहीं है। सो हियर वी कैन राइट, गिव दिस एग्जाम्पल दैट 2 divides 12 but it does not divide 7 and 5. So the statement is false. Okay, you can take some more examples. Let us take about the number 15. 15 जो है 3 से तो डिविजिबल है, लेकिन 15 को हम ब्रेकअप कर सकते हैं कैसे? 11 और 4, 11 + 4 is 15, लेकिन ना तो 11 ना ही 4 3 से डिविजिबल है। तो अगर सम जो है किसी नंबर से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके इंडिविजुअल पार्ट्स भी उसी नंबर से डिविजिबल हों, ये ज़रूरी नहीं है। हो भी सकते हैं, जैसे यहाँ पे 6 6 लेते तो हो जाता, और नहीं भी हो सकता अगर 7 5 लेते हैं तो। क्लियर? देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2. Here are 2 different factor trees for 60. You can see the factor trees and we have to write down the missing numbers. You can see first factor tree 60. 60 को break कर दिया है 6 into 10. पहला breakup हो गया 6, दूसरा हो गया 10. फिर यहाँ पर 6 को break कर दिया है 2 into what? We know 2 3s are 6 and so the missing number will be 3 here. Similarly 10 को 2 पार्ट्स में ब्रेकअप कर रहे हैं, 5 हो गया पहला पार्ट और दूसरा कैसे आएगा? 5 2s are 10 हमें पता है। और इन केस अगर ये बड़ा नंबर होता तो आप इसमें 10 में 5 का डिवाइड भी करके देख सकते थे। 10 divided by 5 is 2 again. So 5 2s are 10. ये बहुत ही ईजी है, सिंपल है, मिसिंग नंबर्स फिलअप करने हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 60 को दोबारा से 2 पार्ट्स में ब्रेकअप किया है। पहला पार्ट दिया है 30, अब दूसरा पार्ट क्या हो सकता है? 30 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 60 आए? तो सिर्फ 3 पर फोकस कीजिए। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 2 से, और फिर तो 0 लग ही जाएगा बाद में, तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। 30 into 2 is 60। अगर ऐसे क्लिक नहीं कर रहा है तो आप 60 में 30 का डिवाइड भी करके देख सकते हैं। आप देखेंगे 30 2s are 60, 0, इसलिए 2 आएगा यहाँ पे मिसिंग नंबर। इसके बाद 30 के भी 2 ब्रेकअप पार्ट्स कर दिए गए हैं। 10 है पहला और 10 3s are 30। यस, 10 into 3 कितना सिंपल है, इजी है। इसके बाद 10 के भी 2 पार्ट्स कर दिए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा ये सभी जो ब्रेकअप्स हैं एंड पॉइंट्स, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 10 को कैसे ब्रेकअप करेंगे? 2 5s are 10। तो अब आप देखिए हर एंड पॉइंट पे एक एक प्राइम नंबर है। यहाँ पर 2 3 5 2 और नीचे भी 2 5 3 2। तो ये एक रूट हो गया 60 और ये सारी ब्रांचेस हैं एंड एट द एंड ऑफ ईच ब्रांच वी हैव अ प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट इज which factors are not included in the prime factorization of a composite number? Which factors are not included? One is the number 1 because 1 is neither a prime number nor a composite number. तो जब हम prime factorization कर रहे हैं तो हमें prime numbers ही तो चाहिए और 1 तो prime number नहीं है, इसलिए एक तो 1 को हम नहीं लेते हैं prime factorization में और दूसरा उसी नंबर को नहीं लेते हैं। जैसे हमने 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम यहाँ पे 1 से थोड़ी कर सकते हैं, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है, और ऐसे ही 24 से नहीं कर सकते क्योंकि 24 तो खुद ही एक कंपोजिट नंबर है जिसको हमें ब्रेकअप करना है, तो 24 भी नहीं ले सकते। तो यहाँ पे आएगा 1 एंड द नंबर itself are not included in the prime factorization of a composite number. Okay, next we take up, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. तो सबसे पहले हमें greatest 4-digit number लिखना है और हमें digits पता है क्या क्या होते हैं digits। 0 से स्टार्ट होकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9।
ये 10 डिजिट्स हैं हमारे पास और अब हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। तो उसके लिए हमें ग्रेटेस्ट डिजिट लेना चाहिए और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है 9। यहाँ पर आप देखेंगे 9 हो गया ग्रेटेस्ट डिजिट। तो इसी को 4 टाइम्स लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर लिखने के लिए ग्रेटेस्ट डिजिट को रिपीट कर दिए 4 टाइम्स। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका मतलब इसको ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करके यही नंबर आ जाए और वो सारे प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो प्राइम नंबर्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं, कौन कौन से थे। 2, 3, 5, 7, 11, 13, देन 17, 19 एंड सो ऑन। ज़्यादातर हमारे यही काम आने वाले हैं। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, एक लाइन स्ट्रेट, एक लाइन हॉरिजॉन्टल। और अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला छोटा प्राइम नंबर है 2। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है, क्योंकि ये ऑड नंबर है। लास्ट डिजिट 9 है, ऑड नंबर है, तो 2 से तो नहीं जाएगा। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे सारे 9 हैं, तो 3 से तो जाता हुआ दिख रहा है। 3 3 जा 9 हमें पता है। एक बार डिविजिबिलिटी टेस्ट भी लगा लेते हैं, चारों को ऐड करते हैं, सम ऑफ द डिजिट्स फाइंड करते हैं। 9 + 9 18, 18 एंड 18 36। 36 आ गया सम। 36 तो 3 की टेबल में आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप आगे और इसको ऐड कर लीजिए 9। अब 9 तो 3 से डिविजिबल है और इसलिए ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 से। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 एंड 3 3 जा 9। अब आगे किससे डिविजिबल होगा? फिर से 3 से होता दिख रहा है, क्योंकि सारे 3 हैं तो 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आप देख रहे हैं हम यहाँ पे जो नंबर है, इस लाइन में जो नंबर है उसको इधर से डिवाइड करते हुए चल रहे हैं। अब 11 11 ये किससे डिविजिबल है? आप देखेंगे 2 से नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, 5 6 7 8 किसी से डिविजिबल नहीं दिखेगा। आप सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा कर देख लीजिए। यहाँ पर ये 11 दिख रहा है छिपा हुआ, तो 11 से ये डिविजिबल होगा और हम कर सकते हैं इसे 11 से डिवाइड। 11 1 जा 11, रिमाइंडर 0। फिर एक साथ 2 नंबर्स डिवाइड करेंगे तो बीच में 0 लेना पड़ेगा और 11 1 जा 11। अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है तो एक बार हम कर भी लेते हैं। 11 1 जा 11, 0। इसके बाद 1, एक नंबर उतरेगा, लेकिन 1 तो छोटा है, तो 2 नंबर उतारने के लिए यहाँ 0 लिखेंगे और 2 नंबर उतार सकते हैं। इसके बाद 11 1 जा 11 और 0 रिमाइंडर, तो 1 0 1 आएगा। नाउ वेयर डू वी सी दिस 1 0 1 इन एनी ऑफ द टेबल्स? क्या ये किसी की टेबल में आता है? आप देखेंगे 1 0 1 नहीं दिखेगा और ये प्राइम नंबर है, इसलिए ये खुद अपने आप से ही डिवाइड होगा। और यहाँ लिख सकते हैं हम 1 0 1 1 जा 1 0 1। तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9999। We can write it as 9999 equal to 3 into 3 into 11 into 101. So this is the required prime factorization. Next question is, write the smallest 5-digit number and express it in the form of its prime factors. Again we have to write a smallest 5-digit number. To write the 5-digit number which is smallest, we can repeat the smallest digit. Smallest digit को repeat करेंगे तो smallest number मिल जाएगा। और smallest digit होता क्या है? 0। तो अगर हम 0 को लिखें 5 times तो एक्चुअली क्या ये कोई नंबर बना? ये तो कोई नंबर नहीं है, तो 0 ही हो गया। तो हम कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये जो डिजिट है ये गड़बड़ है। ये 0 ना लेकर के अगला डिजिट ले लेते हैं जो स्मॉलेस्ट है, और वो है 1। तो हमारा नंबर हो जाएगा 1 and 4 zeros. Now this is the smallest 5-digit number और हम यहाँ लिखेंगे इसको 10,000. This is the smallest 5-digit number 10,000. Now we will write its prime factors.
Again, look at the prime numbers which we will be using. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 and so on. We will be using these numbers. We write the number in the center. एक लाइन ऐसे खींचेंगे लंबी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हमें इसे डिवाइड करना है. जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा उसे हमें डिवाइड करना है. किससे? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से सोचते हुए चलेंगे. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है. क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा? हो ही जाएगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है. ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करते हैं. यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखेंगे. तो पहले हम ये 2 डिजिट्स लेते हैं 10. तो हमें पता है 2 5 are 10 और पीछे की ये 3 0 लिख सकते हैं हम. 5000 आ जाएगा. अब अगेन दिस इज डिविजिबल बाय 2. लास्ट डिजिट इज 0. इट इज़ एन इवन नंबर. तो फिर से 2 से ही डिवाइड करेंगे. 5 तो 2 2s are 4. 1 रिमाइंडर आएगा. 1 and 0 इट विल बी 10. 2 5s are 10. तो ये पूरा नंबर हमने डिवाइड कर लिया. अब 2 0 उतार लीजिए. ये डिवीजन हम मन में कर रहे हैं, ओरली कर रहे हैं. अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रफ पार्ट में करिए पेपर पेन पर और फिर लिखिए. आप गलत नहीं लिखना है. इसके बाद ये फिर से इवन नंबर है. लास्ट डिजिट 0 है और ये 2 से डिविजिबल है. तो 2 से डिवाइड करके फिर से लिखते हैं. 2 1s are 2. अब 5 किससे जाएगा? 2 2s are 4. तो 2 2s are 4. 1 रिमाइंडर. 1 and 0 10. सो 2 5s are 10 और फिर ये 0 आ जाएगा. अगेन ये इवन नंबर है. इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे. 2 6s are 12. 2 2s are 4. 1 रिमाइंडर. 1 के आगे 0 लिखेंगे 10. 2 5s are 10. 6 25. अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऑड नंबर है. लास्ट डिजिट इसका 5 है तो ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है. इसके बाद 3 से चेक करते हैं डिविजिबिलिटी. उसके लिए ऐड करके देखते हैं. 6 and 2 8 and 5 13. तो अब 13 तो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 625 में 3 से डिविजिबल नहीं होगा. फिर हम 5 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे और लास्ट डिजिट इसका 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है. और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 5 से डिवाइड करके. आप अगर ओरली नहीं कर पाएँ तो हम यहाँ रफ में भी कर लेते हैं एक बार. 5 से 5 1s are 5. 1 2 5 2s are 10. 25 और अब 5 5s are 25. 0 रिमाइंडर. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि ये 5 से डिविजिबल है कितनी टाइम्स? 125 टाइम्स. यहाँ से रिजल्ट आया 125, इसलिए यहाँ 125 लिखा. अब 125 को फिर से डिवाइड करना है और फिर से ये 5 से डिवाइड होगा. लास्ट डिजिट 5 है तो 5 से कर सकते हैं हम. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट अप्लाई हो रहा है यहाँ. 5 2s are 10. 2 बचेंगे 25. 5 5s are 25. और अब तो 25 हमें पता है 5 की टेबल में आता है. 5 5s are 25. अब ये 5 बच गया है नीचे. हम कब तक करते हैं? जब तक 1 ना आ जाए नीचे डिवीजन वाले पार्ट में. तो अब ये 5 किससे डिवाइड होगा? 5 से ही. 5 1s are 5. अब हमारे पास 1 आ गया है नीचे. यहीं रुक जाएंगे और अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ लिख सकते हैं इस तरह से. 10,000 is equal to, you can see 2 has to be written 4 times and 5 is also 4 times. So we can write it as 2 into 2 into 2 into 2 and then 5 into 5 into 5 into 5. In this way we have written the prime factorization of the smallest 5-digit number. Okay, next we have find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. Ascending order means from smallest to greatest. Then state the relation, if any, between two consecutive prime factors. So here we have to find the prime factorization of 1729. For this we will draw this line. Write the number in the center.
Now we have to divide this number by any of the prime numbers. The smallest prime number is 2. Is this divisible by 2? No, it is an odd number. You can see the last digit is 9. It is not divisible by 2. Then is it divisible by 3? For this we will have to find the sum of the digits. 1 plus 7 plus 2 plus 9. It is 10, 17, 18, 19 is the sum. 19 is not divisible by 3 and so this number is also not divisible by 3. इनका सम 19 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है. फिर उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5. 5 से भी डिविजिबल नहीं है. लास्ट डिजिट इसका ना तो 0 है ना 5 है. इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 7. क्या ये 7 से डिविजिबल है? तो डिवाइड करके चेक कर सकते हैं. या तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगाइए या इसको 7 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं. 1729. 7 2 ज़ा 14. 3 2. 7 4 ज़ा 28. 4 9. 7 7 ज़ा 49. Oh yes, it has been divided completely. This means what we can write here is 7 which is a prime number. प्राइम नंबर से ही डिवाइड करके देखना है. आप याद रखिएगा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं. तो 7 आ गया यहाँ पर और ये आ गया 247. इसके बाद हमें 247 को डिवाइड करना है किसी भी प्राइम नंबर से जिससे डिवीजन कंप्लीट हो. तो अब फिर से ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, इवन नंबर नहीं है. 3 का टेस्ट लगाते हैं. 2 and 4 6 and 7 13. 13 भी 3 से डिविजिबल नहीं है और ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा. 5 से भी नहीं है. 7 से है क्या? एक बार इसको फिर से 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं. 7 3 ज़ा 21. 37. 5 ज़ा 35. 2 बच रहे हैं. ये तो 7 से भी डिविजिबल नहीं है. इसके बाद अगला प्राइम नंबर क्या है? 11. 7 के बाद 11. क्या ये 11 से डिविजिबल है? इसका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं 11 का. ऑड प्लेसेस पे नंबर्स हैं 9 and 7. उनका सम हो गया 16. इवन प्लेसेस पे 2 और 1. इनका सम हो गया 3. 16 माइनस 3 दोनों का डिफरेंस 13. 13 11 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है. यहाँ मैंने 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ किया है. ऑड प्लेसेस का सम 16, इवन का सम 3, डिफरेंस 13. इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर एक बार लिख लेते हैं हम. 2 3 5 7 11 13 9 17 आएगा. इसके बाद 19 और इस तरह से. तो अब हम देख चुके हैं 11 तक तो ये डिवीजन नहीं हो रहा है. इसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13. 13 से डिवाइड करके देख लेते हैं 247 को. 13 1 ज़ा 13. 1 1 7 and 13 9 ज़ा is 117. Oh ho, we are getting 0. The division is complete. Now what we can write is 13. How many times? 19 times here. Okay, now we have to divide 19 and we know that 19 is a prime number itself. It does not come in the table of any other number and so 19 will divide itself in this way. 19 1 ज़ा 19. 1 आ गया यहाँ पे, रुक जाते हैं और ये हो गए तीनों प्राइम फैक्टर्स इसके 17 29 के. इसको यहाँ पर इरेज कर देते हैं और यहाँ लिख लेंगे 1729 is equal to 7 into 13 into 19. Okay, now what has been asked? Arrange them in ascending order. छोटे से बड़ा, और ये तो पहले से ही छोटे से बड़े हैं. 7 सबसे छोटा, फिर 13, फिर 19. ये तो कर लिया हमने. फिर क्या पूछ रहे हैं? State the relation if any between two consecutive prime factors. इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो आप क्या देखेंगे? आप इन दोनों में 6 का गैप है. 13 माइनस 7 करेंगे आप तो 6 आएगा. इसी तरह से इन दोनों में भी 6 का गैप है. अगर 19 में से 13 माइनस करेंगे तो फिर से 6 आएगा. तो ये रिलेशन हो गया. क्या रिलेशन?
The difference between two consecutive का मतलब है लगातार आने वाले, यहाँ पर 7 के बाद लगातार 13 आ रहा है और 13 के बाद लगातार 19 आ रहा है. The difference between two consecutive prime factors is 6. This is the relation which is hidden here. Okay, so these were question number 1 to 6 of exercise 3.5. In our next class, we will be completing this exercise. Till then, keep practicing, keep watching. Goodbye.